اللہ کرے. ایک منٹ بتائیے گا دوستوں. اوکے جی بنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. آج قومی اسمبلی میں لیڈر آف دی اپوزیشن جناب عمر ایوب خان صاحب، جناب اسد قیصر صاحب اور ان کے ساتھ شریک وقت تشریف لائے ہیں، اور ہم نے ان کو خوش آمدید کہا ہے. پہلے بھی تشریف لاتے رہے ہیں، اور یہ ایک خیر سگالی کا ان کا تشریف لانا تھا. ان کا جو سوچ ہے کہ اپوزیشن جماعتوں کے درمیان رابطے رہیں اور ملکی مسائل پر ہم مشترک موقف لیتے رہیں، اور ایک مشترک موقف لینے کے لیے ایک سیاسی ماحول بھی موجود رہے، تو اس تصور سے ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ سیاسی ماحول میں رابطے بڑھتے چلے جائیں، تعلقات کی بہتری کی طرف جانا یہ ہمارا مقصود بھی ہے. تلخیوں کو دور کرنا، اس کی بھی آج کے اس ماحول میں ضرورت ہے، اور ہم اس جذبے کو خوش آمدید کہیں گے. باقی ملک کے معاملات ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آئین پاکستان اس کی کوئی حیثیت نہیں رہی ہے، اور پارلیمنٹ کی اہمیت ختم ہو چکی ہے. جمہوریت اپنا مقدمہ ہار رہا ہے، اور دہشت گردی کے خلاف آپریشن گزشتہ 10-15 سالوں سے چل رہا ہے، لیکن مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کا. اس میں دگنا اضافہ نہیں بلکہ 10 گنا اضافہ ہوا ہے. اب یہ کیا حکمت عملی ہے کہ بڑے بلندبان دعووں کے باوجود وہ عام آدمی کو امن فراہم نہیں کر سکے. اور حال ہی میں چند دنوں پہلے قبائلی علاقے میں جنوبی وزیرستان میں ڈرون حملہ کیا پاکستان کی طرف سے، اور عام شہریوں کو شہید کیا گیا، اور اعتراف کیا اس کا، غلطی مانی. تو اس قسم کی منصوبہ بندی کے بغیر اندھا دھند قسم کا آپریشن جو عام آدمی کی زندگی کو خطروں کی طرف لے جاتا ہے، غیر محفوظ بنا دیتا ہے، ظاہر ہے کہ یہ کبھی بھی ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہو سکتی صورتحال. اس وقت چمن بارڈر کے اوپر 6-7 ماہ سے لوگوں کا دھرنا بیٹھا ہے، جو یہاں سے احکامات جاتے ہیں اور وہاں پر قوانین لگائی جاتی ہیں، ان سے وہاں کے مقامی آبادیوں کا روزگار تباہ ہو گیا ہے. کوئی متبادل روزگار بھی نہیں دیا جا رہا، اور بےہنگم قسم کے شرائط عائد کر کے کہا جاتا ہے کہ یہ پاکستان کی ضرورت ہے اور پاکستان کا مفاد. اب یہ معاملہ آگے بڑھ گیا ہے. جنوبی وزیرستان کا انگور اڈا، وہاں پر لوگ نکل آئے ہیں، وہ اپنی زندگی چاہتے ہیں، وہ اپنا روزگار چاہتے ہیں، وہ اپنا معاش چاہتے ہیں، اور کوئی ان کو متبادل نظام نہیں دیا جا رہا. ان کو شاید اندازہ نہیں ہے کہ انگریز کے زمانے میں جب یہاں پر عارضی لائن ڈیورن لائن کے نام سے بچھائی گئی تھی، تو وہ قبائل کے بیچ میں سے تھی. ایک بھائی کا گھر ادھر تھا تو ایک بھائی کا گھر ادھر تھا. اب اس قسم کی آبادی جہاں ایک بھائی ادھر ہے اور ایک بھائی ادھر ہے، ایک دوسرے کی آواز پہچانتے ہیں، گھروں سے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، اور یہاں سے ایسی قسم کی پابندیاں ان پر عائد کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں کہ جو صدیوں سے وہاں پر موجود روایات کا خاتمہ کیسے ممکن ہوگا.
बहुत से ज़मानों में इस किस्म की कोशिशें की गई, लेकिन वो कोशिशें नहीं कामयाब हो गई। गुलाम खान के ऊपर लोग निकल आए हैं और वहाँ पर इज़्तिराब है। जमरूद के ऊपर लोग निकल आए हैं, वहाँ पर यही इज़्तिराब है कि कदरें लगाई जा रही हैं आवाम के ऊपर और कोई मुतबादल रोज़गार की तरफ कुछ भी इशारे नहीं दिए जा रहे हैं। तो ये सारी सूरत हाल हमारे मुल्क की है। हमारा उसके लिए फिक्रमंद होना एक फितरी अमर है, और उस हवाले से हम ये समझते हैं कि जो भी हमारे मुश्तरकात हैं पार्लियामेंट के अंदर, हमारे उस पर आवाज़ एक होनी चाहिए, और मुल्क के अंदर भी एक खुशगवार सियासी माहौल की तरफ हमें बढ़ना चाहिए। ज़ाहिर है हम अगर इख्तलाफ नहीं ख़त्म कर सकते तो इख्तलाफात को नरम कर सकते हैं, रवैयों को नरम कर सकते हैं। कुछ तरजीहात ऐसी होती हैं कि उन तरजीहात के लिए दूसरे तरजीहातों को मुआफ़र करना होता है। तो इस हवाले से एक बेहतरी की तरफ जाने का एक सफ़र है, और इसी हवाले से हमारे इंतहाई मोहतरम मेहमान गिरामी तशरीफ़ लाए हैं, जिनको मैं खुशामदीद कहता हूँ। बाकी गुफ्तगू आप उनसे सुनिए। बहुत 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 शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मौलाना फजलुर रहमान साहब, जो जमीयत उलमाए इस्लाम ए के लीडर भी हैं, और उनके साथ ही उन्होंने आज खुले दिलों के साथ हमें यहाँ पे खुशामदीद कहा। जिस तरह के मौलाना फजलुर रहमान साहब और मैं ज़ाती तौर पे हमारा ताल्लुक इनसे बहुत पुराना चलता आ रहा है। बड़ी मुस्तफीद गुफ्तगू शनीद हुई। बहैसियत लीडर ऑफ द अपोजिशन कौमी असेंबली में हम लोग चाहते हैं कि चाहे वो JUI फे हो, हमारी आईन पाकिस्तान के तहत, कि हम लोग पाकिस्तान में आइन और कानून की पासदारी के लिए हमारी ये जद्दोजहद चलती जाए। और यही मेरे कायद जनाब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की भी ख्वाहिश है, हमारे तहरीक के कायद जनाब अचकज़ई साहब की भी यही ख्वाहिश है, और हर एक मुहिब वतन पाकिस्तानी की भी यही ख्वाहिश है। ये उस सिलसिले की कड़ी है कि आज बड़ी तवील और अच्छी गुफ्तगू हमारी होती रही, और ये होती भी जाएगी आगे। JUI फे का अपना एक सिलसिला, एक जलसों का सिलसिला चल रहा है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का भी एक सिलसिला हमारा अनाउंस भी किया है, और उसको हम लोग इंशाअल्लाह अमली जामा पहना के वो जलसे भी पूरे पाकिस्तान में होंगे, जिसका शेड्यूल हमने जारी किया। कन्वेंशंस भी पूरे पाकिस्तान में होंगे। अहम बात यह है कि आज पाकिस्तान में आइन नामी कोई चीज है ही नहीं। आज आप देखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दफ्तर में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हमारे साथी हमाद अजहर साहब आए, और उसके बाद इस्लामाबाद पुलिस का धावा जो सेंट्रल ऑफिस में बोला गया, उसकी हम लोग शदीद अल्फाज में मुज़ामत करते हैं। इस्लामाबाद पुलिस बजाय इसके कि रऊफ हसन साहब के हमला आवरों का ताक़ुब करें, जियो फेंसिंग करें, वो इनोसेंट यानी कि बगैर किसी कसूर वाले शख्स के पीछे, बेकसूर शख्स के पीछे लगे हुए हैं, इसकी हम लोग मुज़ामत करते हैं। इसके साथ साथ ये भी मैं कहता चलूं कि चमन पे जहां पे धरना हो रहा है, वहां पे उन लोगों के जायज मुतालबात हैं, और जैसा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी कहा, फ्लोर ऑफ द हाउस पे मैंने अपनी तकरीर में कहा, मेरे साथी मेरे भाई असद कैसर साहब ने बात की, उन जायज मुतालबात के ऊपर हुकूमत को जरूर नजरसानी करनी चाहिए। बजाय इसके कि पासपोर्ट आप इस्तेमाल करें, वो CNIC में हर वो सिक्योरिटी फीचर मौजूद है, उसके ऊपर उनको इजाजत होनी चाहिए। वहां पे मारंग बलोच साहिबा है, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी क्वेटा में, उनको नहीं करने दी। असिस्टेंट कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जगह को सील कर दिया, प्रेस क्लब को सील कर दिया। क्यों? वहां पे इजहार राय की इजाजत होनी चाहिए। यही हुस्न जमहूरियत होता है, और इन इक़दामात से
कोई मुल्क मजबूत नहीं होता, वो कमजोर होता है, जड़ें कमजोर होती हैं, अदम इस्तेकाम होता है, और इस चीज की हम लोग शदीद मुज़ामत करते हैं। यहां पे पाकिस्तान में जमहूरियत फलेगी फूलेगी, सरमायाकारी आएगी, जहां पे आपका आइन और कानून की बालादस्ती होगी, वहां पे इन्वेस्टमेंट बेहतर होगी, नौकरी के मौके होंगे। इस मौजूदा सूरत हाल में न सरमायाकारी हो रही है, क्योंकि दुनिया जो है उनको मालूम है कि इस वक्त पाकिस्तान में अदल व इंसाफ की कोई वो चीज किरण नजर नहीं आ रही। ये एक बदतरीन मार्शल लॉ के दौर से भी बदतरीन इस वक्त ये गैर जमहूरी जो हुकूमतें इस वक्त बैठी हुई हैं हमारे ऊपर, वो ये काम कर रही हैं, और इस चीज की हम लोग शदीद अल्फाज में मुज़ामत करते हैं। कैसर साहब आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मौलाना फजल रहमान साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि बहुत मोहब्बत से, बहुत खुले दिल से उन्होंने हमें वेलकम किया, और हमारे जो इश्यूज़ हैं, जो हमारे मुश्तरकात हैं, उस पर हमारी डिस्कशन रही। ख़ासकर जो इस वक्त मुल्क में जो है ना आइन मातल है, और इस वक्त एक बनाना रिपब्लिक की मुल्क बनता जा रहा है, और जो इस वक्त आज़ादी राय पे जो कदरें लग रही है, और जो कानून पास हो रहे हैं, और जो असम्बली में भी साहब के ऊपर पाबंदी लगाई गई है, सारा डिस्कशन हमारे हुए हैं। और ख़ासकर जो पंजाब में गंदम क्राइसिस हैं, जो बहुत बड़े हमारे किसान परेशान हैं, और पाटा में जो नई टैक्स के रिपास की बात हो रही है, और वैसे भी वहाँ वार जोन है, वहाँ कोई मतलब मुमकिन नहीं है कि इकॉनमी वैसे भी वहाँ बैठ गई है। तो इस सारे डिस्कशन पे हमारे मुश्तरकात हैं, और इंशाल्लाह इस पे हम मुश्तरक जद्दोजहद करेंगे। बाकी जो है ना अपनी पार्टियों को मज़ीद भी जो है ऑन बोर्ड दिया जाएगा। कल खान साहब से भी इंशाल्लाह ताला मुरीफ साहब जाएंगे, मीटिंग करेंगे, मौलाना साहब भी अपने शूरा में जो है ना चीज़ों को। लेकिन एक बात क्लियर है कि आइन और कानून की बालादस्ती के लिए हम तमाम तबकों को एक होना पड़ेगा। इस वक्त इस मुल्क में कोई रास्ता और नहीं है, मुल्क इस तरह नहीं चलाए जा सकते जहां मुल्क में आप किसी कानून में खातिर में नहीं लाते। यानी जो रोपसन साहब के साथ हुआ है, क्या एक उस मुल्क में हो सकता है जहाँ कानून हो, जहाँ कानून की हुक्मरानी हो? ये तो क्लियर मैसेज देते हैं कि इस मुल्क में ताकत का कानून है, जंगल का कानून है। तो इसको हम मजम्मत करते हैं, और इंशाअल्लाह ताला मौलाना साहब को तो अल्लाह ताला ने बड़ी एक हिम्मत दी है, ताकत दी है, और हमारी ख्वाहिश है कि इस ताकत और इस हिम्मत को हम इस मुल्क के लिए